Wow, this is the word that came out of my mouth when I finished this game. The Witcher 2 Ascents of Kings एक bigger, bolder and arguably better game है compared to The Witcher 1, जो पहले गेम के almost सारे flaws को fix करता है while creating some new ones of its own. In this video हम any flaws and game के positives के बारे में बात करेंगे while I giving my personal thoughts on it. So The Witcher 2 Ascents of Kings second installment है CD Projekt Red की award-winning video game series में, जो May 17, 2011 में रिलीज हुआ था with very positive reviews. At that time, critics ने गेम को इससे combat, customization, graphics, environments, immersion and story technically praise किया था, with some critics giving it awards for its graphics and story. Just like The Witcher 1, CD Projekt Red ने April 2012 में The Witcher 2 का एक updated version रिलीज किया, titled The Witcher 2 Ascents of Kings Enhanced Edition, जो PC and Xbox 360 के लिए रिलीज हुआ था. गेम के इस वर्जन में CD Projekt Red ने new content ऐड किया, like 2 new side quests in Chapter 3, new cutscenes and cinematics, and over 100 improvements and bug fixes. The Witcher 2 Enhanced Edition ने original गेम के कई big issues को fix किया, like adding more content to Chapter 3, जो original version में काफी short and unsatisfying था. Enhanced Edition is the most definitive way to play The Witcher 2, and this is the version जिसे मैं review कर रहा हूँ. So just like my Witcher 1 video, ये एक full-fledged review नहीं है, and ये video same structure follow करेगा, जहाँ मैं पहले flaws, then positives के बारे में बात करूँगा. With all of these things out of the way, let's talk about the flaws. Starting with combat. Instead of the rhythm-based combat system of the first game, Witcher 2 एक proper real-time combat system को use करता है, inspired by games like Batman Arkham Asylum and Dark Souls. So now players light and strong attacks use करते हैं while changing targets like Batman Arkham style. You can dodge and parry enemy attacks, use different Witcher signs at any time, and new to this game, use secondary weapons like throwable knives, bombs, and set traps for enemies. CDPR ने पूरे combat system को streamline भी किया, like changing both signs and secondary weapons during combat with weapon wheel or using secondary weapons without pausing the game. All of these are positive changes, but at the same time, Witcher 2 का combat काफी frustrating हो सकता है because of various reasons like combat balancing and difficulty. जहाँ game के opening chapters and games से ज़्यादा difficult feel हो सकते हैं because Geralt don't even have basic abilities like blocking, parrying, and attacking multiple enemies at once. Plus dodge distance काफी miserable है जब तक players इसे upgrade नहीं करते. Most of the time players multiple enemy groups से लड़ते हैं, जहाँ combat basically dodge attack and dodge attack बन जाता है, because एक जगह खड़ा रहना basically suicide है. And early game में Geralt सिर्फ 4 to 5 attacks से मर सकता है. Even the basic combat काफी clunky feel हो सकता है, because of sometime unresponsive controls, long attack animations, almost useless parry system, no animation cancelling, and no proper attack response. Compared to The Witcher 1, Witcher 2 की enemy variety भी काफी low है, especially in monsters, and game में mini bosses and boss fights भी हैं, जो काफ़ी अनबैलेंस्ड हैं, स्पेशली अगर प्लेयर स्वॉर्ड्समैनशिप की जगह मैजिक एंड एल्केमी बिल्ड पर फोकस कर रहे हैं. ये बॉसेस काफ़ी इजी फील हो सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट. ओवरऑल द विचर 2 कॉम्बैट सिस्टम एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट था, जिसके रिजल्ट काफ़ी मिक्स थे. हाफ ऑफ द टाइम गेम में कॉम्बैट काफ़ी चैलेंजिंग फील हो सकता है, बट व्हेन इट वर्क्स प्रॉपर्ली इट्स एक्चुअली रियली फन. पर्सनली फॉर मी कॉम्बैट काफ़ी फन था, विद मी यूजिंग अ मिक्स ऑफ मैजिक एंड स्वॉर्ड्समैनशिप बिल्ड, जहाँ मैं एनिमीज को साइंस का यूज़ कर ट्रैप, इग्नाइट या स्टन कर स्वॉर्ड से अटैक करता था, विद समटाइम्स यूजिंग बॉम्ब्स टू डैमेज एंड स्टन एनिमीज. ये टैक्टिक पूरे गेम में काफ़ी इफेक्टिव थी, विद सम फाइट्स बीइंग फ्रस्ट्रेटिंग लाइक व्रैन गार्डियन बॉस फाइट, जिसे मैंने एटलीस्ट 10 टाइम्स रिट्राई किया होगा बिकॉज ऑफ दोज डैम गार्गोयल्स. इन द एंड कॉम्बैट इज रियली फन बट अनपॉलिश्ड एंड फ्रस्ट्रेटिंग टाइम टू टाइम. पर ये विचर 2 की एक काफ़ी स्मॉल प्रॉब्लम है कंपेयर टू द अदर वंस, विच आर UI, एल्केमी एंड अपग्रेड सिस्टम. रिमेंबर कैसे मैंने विचर 1 के UI एंड इन्वेंटरी सिस्टम को बैड गेम डिज़ाइन बताया था? Well, this shit is even worse in this game. The entire inventory system एक complete mess है जिसमें players multiple menus को जगल करते रहते हैं for finding different things. There's a weight restriction now जो काफ़ी low है, at least for me, जो most of the time काफ़ी सारे potions and secondary weapons रखता है. And because of this restriction मुझे entire playthrough में बार बार inventory को खाली करना पड़ता था. This thing is really annoying. स्पेशली when आप एक क्वेस्ट के मिड में हैं जहाँ आपको काफ़ी सारी लूट मिलती हैं लाइक आर्मर, स्वॉर्ड, मॉन्स्टर पार्ट्स एंड क्राफ्टिंग मटेरियल्स. अगर प्लेयर्स वेट रिस्ट्रिक्शन क्रॉस कर लेते हैं देन Geralt कैन रन. सो आपको इन्वेंटरी से आइटम्स ड्रॉप करने होते हैं जो काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड आयरन ओर जो वेपन्स क्राफ्ट करने के काम आते हैं. द मैप इज प्रीटी मच यूजलेस, जो प्लेयर्स को कंफ्यूज करने के अलावा कुछ नहीं बताता. एंड यू कैन डू इन मार्क लोकेशंस. देयर आर ब्लू एंड ग्रीन डॉट्स इन मिनी मैप जो पूरे गेम में कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए गए. Sometimes वो important NPCs हो सकते हैं and other times guards. And overall, it's just bad. जो हर एक न्यू लोकेशन चैप्टर के साथ even more confusing होते आता है. So just follow quest mark and minimap. Alchemy and potion systems are also terrible because now players को potion drink करने के लिए first meditation menu में जाना होता है, then go in potion menu and then select 3 potions of your choice.
ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है जिसमें एवरी टाइम प्लेयर्स को एक अनस्केपेबल एनिमेशन देखना पड़ता है। प्लस नाउ Geralt कैन ड्रिंक पोशन ड्यूरिंग फाइट्स। लाइक व्हाई? व्हाट द हेल हैपेंड हियर? सो बेसिकली प्लेयर्स को एवरी फाइट के पहले पोशंस ड्रिंक करने होंगे, which is impossible because players don't know when there will be a tough fight. So ये basically trial and error है, और just keep drinking potions every 10 minutes, जो well absolutely annoying है। Also, personally I think the entire alchemy system काफ़ी weak है, especially because of potion duration जो mostly 10 minutes हैं, and potion negatives, जिसमें कुछ potions drink करने से players के stats पर huge effect पड़ता है, like doing less damage or some other random negatives. Now गेम में अदर पोशंस ड्रिंक करके इन नेगेटिव्स को कम कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट टू कॉन्वोल्यूटेड फॉर मी। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज डाउन साइड्स प्लेयर्स इस गेम में एक स्पेसिफिक बिल्ड क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन गो फुल ऑन एल्केमी, मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप बिल्ड, बिकॉज गेम में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली स्वॉर्डमैनशिप स्किल्स की, बिकॉज विदाउट दैम Geralt बेसिक कॉम्बैट मैनर्स भी यूज़ नहीं कर सकता। एंड टॉकिंग अबाउट स्किल्स एंड बिल्ड्स, द स्किल ट्री इन दिस गेम इज ऑल्सो अ वेरी बिग मैस। सो इन द Witcher 1 स्किल ट्री काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। प्लेयर्स को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे एंड वो उन पॉइंट से डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स अपग्रेड कर सकते थे, लाइक कॉम्बोज, एल्केमी, हेल्थ अपग्रेड, यू गेट द आइडिया। इन द Witcher 2 many skills are locked behind other skills. फॉर एग्जाम्पल इन स्वॉर्डमैनशिप स्किल ट्री अगर आप स्वॉर्ड अटैक डैमेज बढ़ाना चाहते हैं देन फर्स्ट आपको पोशन स्किल को अपग्रेड करना होगा। इन मैजिक ट्री अगर आप यार्डन और इग्नी साइन को अपग्रेड करना चाहते हैं देन फर्स्ट आपको अदर 3 और 4 साइंस अपग्रेड करने होंगे। सेम इन एल्केमी ट्री। ना ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने ज़्यादा लोगों को डिस्कस करते हुए नहीं देखा, सो ये एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बट द गेम लेंथ इज क्वाइट शॉर्ट एंड मेरे प्ले थ्रू के एंड तक मैंने एक भी स्किल ट्री को पूरी तरह अपग्रेड नहीं किया, इवन दो मैं मोस्टली सिर्फ मैजिक ट्री पर ही फोकस कर रहा था। अगेन ये एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट। एंड या दीज आर ऑल द फ्लॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट। गेम में ज़रूर कुछ और छोटे मोटे फ्लॉज होंगे लाइक क्विक टाइम इवेंट्स, बट नथिंग मेजर अदर दैन दीज। So now let's talk about the positives, starting with graphics. The Witcher 2 Enhanced Edition 2012 में रिलीज हुआ था, and girl, this game still looks fantastic. Instead of using Aurora engine again, CDPR ने खुद का गेम इंजन डेवलप किया, known as the Red Engine. Then for Enhanced Edition, उन्होंने Red Engine को अपग्रेड किया with some new added features and console support. The Witcher 2 fixed every single problem that Witcher 1 had in this department. The graphics still looks outstanding. आर्ट स्टाइल एंड आर्ट डायरेक्शन अभी भी डार्क एंड ग्रिटी है, जस्ट लाइक हाउ इट शुड बी। प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है विद गॉर्जियस इन इंजन कट सीन्स, 2D हैंड ऑन सिनेमैटिक्स एंड डाउनराइट रियलिस्टिक CGI cinematics with even better voice acting. In graphics, presentation and voice acting, CDPR made a really huge jump between The Witcher 1 and Witcher 2. And I just can't believe कि इन both games के बीच सिर्फ 3 years का gap है। Also, अगर आपके पास एक मिड रेंज गेमिंग PC है just like mine, then आप Ubersampling and cinematic depth of field भी यूज़ कर सकते हैं। Ubersampling एक ग्राफिकल फीचर है जो गेम को मल्टीपल टाइम्स रेंडर करता है टू रिमूव एनी काइंड ऑफ जैकेट एजेस विदाउट द ब्लर इफेक्ट ऑफ एंटी अलियासिंग, बेसिकली डबलिंग द इन गेम रेंडर रेजोल्यूशन। ये काफ़ी डिमांडिंग फीचर है, बट एट द सेम टाइम ये गेम को ग्राफिकली इवन मोर इंप्रेसिव बनाता है, सो डेफिनेटली वर्थ इट इफ योर PC कैन हैंडल इट। स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर स्टिल द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम एंड द रीजन टू प्ले Witcher गेम्स। सो द Witcher 2 की स्टोरी सेट है फ्यू मंथ्स आफ्टर द इवेंट्स ऑफ Witcher 1, जहाँ Geralt किंग फोल्डर्स के लिए एज ए बॉडीगार्ड वर्क कर रहा है। बट इन द गेम्स प्रोलॉग एक मिस्टीरियस विचर किंग फोल्डर्स का असैसिनेशन कर देता है, जिसका ब्लेम Geralt पर आता है। टू क्लियर हिज नेम एंड फाइंड हु द मिस्टीरियस विचर इज, Geralt एक जर्नी पर निकलता है जब वो ओल्ड फ्रेंड्स, न्यू एलाइज एंड न्यू एनिमीज को फेस करता है। द Witcher 2 स्टोरी इज वेरी टाइटली स्ट्रक्चर्ड, जो ड्रास्टिकली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्लेयर चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल इन द एंड ऑफ चैप्टर 1 प्लेयर्स को रोच एंड योवरुथ के बीच किसी एक को चूज करना होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन चैप्टर 2 एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा with different characters, quests and locations to explore. Roach's path Witcher यूनिवर्स के पॉलिटिक्स पर फोकस करता है, जहाँ प्लेयर्स डिफरेंट पॉलिटिकल कैरेक्टर्स से मिलते हैं, while on the other hand योवरुथ का पाथ Witcher यूनिवर्स के फैंटेसी एलिमेंट्स पर। Both of these versions of chapter 2 are must play because they're really great and completely different है, जो बेसिकली दो डिफरेंट गेम्स की तरह फील होते हैं, both content and tone wise. बट इस स्टोरी स्ट्रक्चर एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, क्योंकि मैनी प्लेयर्स एक ह्यूज चंक ऑफ कंटेंट मिस कर सकते हैं, बिकॉज नॉट एवरीवन रीप्ले गेम्स। And I have to give CDPR props for that. So अगर आप The Witcher 2 खेल रहे हैं, then you have to replay it at least for once. Also, I really want to talk about side quest because इस गेम में pretty much every quest खुद की एक यूनिक स्टोरी है। The Witcher 2 एक काफ़ी linear एक्सपीरियंस है, जिसमें हम काफ़ी स्मॉल हब बेस्ड एरियाज एक्सप्लोर करते हैं। These areas are not as big as Witcher 1 maps,
बट ये वर्ल्ड्स dozens of interesting and meaningful side quests से भरे हुए हैं, लाइक एक टॉर्चर्ड सोल को जस्टिस दिलाना या एक एडवांस सोल्जर का रैट से पीछे छुड़वाना जो सोल्जर को उनके मर्डर के लिए एक्यूज करते हैं। सो गेम में काफ़ी सारे ग्रेट साइड क्वेस्ट हैं एंड बिकॉज ऑफ इट्स लिनियर स्ट्रक्चर सीडी पर इन क्वेस्ट को ऑलमोस्ट परफेक्शन तक पॉलिश कर पाए विद एवरी क्वेस्ट हैविंग मल्टीपल एंडिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस मैंने pretty much सारी साइड क्वेस्ट कंप्लीट की एंड मेरा फर्स्ट प्ले थ्रू अराउंड 60 to 17 आवर्स लॉन्ग था, एड 20 to 30 मोर फॉर सेकंड पैथ एंड ये गेम ऑल अराउंड 100 आवर्स लॉन्ग है। प्रीटी ग्रेट फॉर लिनियर आरपीजी। गेम में एक क्राफ्टिंग सिस्टम भी है जिससे प्लेयर्स डिफरेंट वेपन्स एंड आर्म्स बिल्ड कर सकते हैं एंड दिस सिस्टम इज वर्थ यूजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्राफ्टेबल आइटम्स गेम वर्ल्ड में एंड शॉप से मिलने वाले इक्विपमेंट से कई गुना ज़्यादा बेटर हैं। एंड अनलाइक द फर्स्ट गेम विचर 2 में काफ़ी सारे आर्मर्स एंड वेपन्स हैं जो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट लगते हैं। सो देयर आर कॉस्मेटिक डिफरेंसेस टू एंड मोस्ट आर्मर्स एंड वेपन्स काफ़ी बैडर्स लगते हैं। ऑल्सो प्लेयर्स गैरल्ट की हेयर स्टाइल भी कस्टमाइज कर सकते हैं विच इज़ अ नाइस टच। बट गेम में इतने सारे इक्विपमेंट्स होने का एक स्मॉल डाउन साइड भी है। प्लेयर्स रेगुलर बेसिस पर न्यू एंड बेटर आर्मर्स एंड वेपन्स ढूंढते रहते हैं बिकॉज देयर सम ऑफ द कस्टमाइजेशन ऑप्शंस लाइक वेपन रून्स एंड आर्मर एनहांसर्स यूजर से बन जाते हैं बिकॉज वो रिमूवेबल नहीं है विच इज द रीज़न मैंने मोस्ट ऑफ द गेम इन एनहांसमेंट्स को यूज़ ही नहीं किया एक्सेप्ट इन चैप्टर 3 जो गेम का फाइनल चैप्टर है। दिस इज नॉट अ डील ब्रेकर बट अ माइनर अनॉयंस नेवरदलेस। एंड फाइनली म्यूजिक which is as great as Witcher 1 if not better. There are so many phenomenal songs like Intermedia, A Sense of Kings, Sorceresses, A Quiet Corner, A Watering Hole in the Harbor, A Nearly Peaceful Place and Blue Mountains. All of these songs are epic and atmospheric जो हर एक सीक्वेंस के लिए एक certain mood set करते हैं। The Witcher games have some of the best music in video game industry and The Witcher 2 is in the same boat. And yep, that's all I have to say about this game. For CD Projekt Red, The Witcher 2 एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट था जहाँ उन्होंने कई मिस्टेक्स करी बट इन द एंड दे मेड एन आउटस्टैंडिंग गेम जो ऑलमोस्ट एवरी वे में इसके प्रेडेसेसर को सरपास करता है एंड इवन विद ऑल ऑफ इट्स फ्लॉज द विचर 2 वन ऑफ द बेस्ट आरपीजीज में से एक है। एंड इफ दिस इज व्हाट द विचर 3 इज बट इवन बिगर एंड बेटर देन आई एम गोना हैव अ हेल ऑफ अ टाइम। बट अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सेक्सी डे। पीस।